The Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Bill 2021 has been cleared by the Cabinet today. Now, in India, with the increase of insurance amount from 1 lakh rupee to 5 lakh rupees, is going to cover 98.3% of all deposit accounts. Because of this 5 lakh increase, 98.3% of all deposit accounts will get covered. And in terms of deposit value, 50.9% deposits value will be covered. Now, if this is what we have in India now after this cabinet clearance, just compare what prevails outside globally. Deposit insurance coverage is only 80% of all deposit accounts globally. And it covers only to 20 to 30% deposit value. So what we have done today in India because of cabinet approval means that 98.3% as opposed to 80% globally. In India it's 98.3%. And as regards account value, we will be covering 50.9% value, while globally it is only 20 to 30% value. Every bank actually used to have 10 paisa premium given for 100 rupees of deposit. This is now being raised to 12 paisa. We are saying it should not be more than 15 paisa at any point in time per 100 rupees. So that is being made explicit. And we are also making sure that we will have an enabling provision in case banks feel that this has to go up, for them to go up, but within a certain prescribed limit, which will be determined by the government in consultation with the RBI. The Limited Liability Partnership Amendment Bill, interestingly, one thing which really stood out for me was this act was passed in 2008, became effective in 2009, and from 2009, with about 81 sections in it, from 2009 till today, there was never a reason for touching or bringing in any amendment whatsoever. For the first time for the Limited Liability Partnership Bill, an amendment is being proposed this time. And what is the necessity for us to bring in the amendment? I'll briefly touch upon the fact that there was a committee which was formed, Company Law Committee, which was formed in 2013. They had actually looked at the Companies Act only and given a lot of recommendation, but gradually they also were made to they were required to also look into LLPs, limited liability partnerships. Now, why is this limited liability partnership amendment required now? Because we are doing a lot of change in the Companies Act, and those corporate bodies under the Companies Act are getting a lot of ease of doing business. Most of the sections which had criminality in its approach, criminality being the spirit with which some of the sections were written, are now getting decriminalized for Companies Act. But for the LLP, a similar treatment had to be given, because now LLPs are becoming more popular among startups. हमारा सिर्फ एक सवाल है, क्या हिंदुस्तान की सरकार ने पेगासस को खरीदा, हां या ना? क्या हिंदुस्तान की सरकार ने अपने लोगों पर पेगासस हथियार का इस्तेमाल किया, हां या ना? हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं।
हमें क्लियरली बताया गया है, सरकार ने बताया है कि पेगासस पे कोई भी बातचीत नहीं होगी हाउस में। मैं हिंदुस्तान के युवाओं से, जनता से पूछना चाहता हूं, आपके फोन के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने एक हथियार डाला है, मेरे खिलाफ वो हथियार का प्रयोग किया गया, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ उस हथियार का प्रयोग किया गया, बाकी नेताओं के खिलाफ वो हथियार प्रयोग किया गया, प्रेस के लोगों के खिलाफ ये हथियार का प्रयोग किया गया, एक्टिविस्ट के खिलाफ इस हथियार का प्रयोग हुआ। तो सदन में बात क्यों नहीं होनी चाहिए? क्या कारण है कि सदन में बात नहीं हो रही है? हम नरेंद्र मोदी जी से, अमित शाह से ये पूछ रहे हैं कि आपने इस हथियार का प्रयोग हिंदुस्तान के लोकतांत्रिक इंस्टीट्यूशंस के खिलाफ क्यों किया? हिंदुस्तान के लोकतंत्र ने क्या किया है जो आपने इस हथियार को लोकतंत्र के खिलाफ यूज किया है? यह सवाल है। ये हमने सिंथेटिक मटेरियल जो बनाया है, ये आपको देख सकते हैं शीशी के अंदर बहुत ही महीन पाउडर है, और ये हमने केमिकल प्रोसेस से बनाया जिसके अंदर हमने केमिकल्स यूज़ करके ही बनाया, और इसके अंदर कोई भी नेचुरल इंग्रेडिएंट नहीं है। और इन पाउडर्स की खासियत ये है कि इसके अंदर कुछ ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंट्स डालें जिसकी वजह से ये जब बॉडी के अंदर इंसर्ट करेंगे तो उस समय ये पाउडर एक्टिव रहेगा और अंदर जाके खुद एब्जॉर्ब होता रहेगा, और इसके जहाँ जहाँ भी स्पेसिस होंगे और इसकी सराउंडिंग में बोन नेचुरल वे में डेवलप होती चली जाएगी। जो ये मटेरियल है क्योंकि डिजॉर्बेबल है और एक्टिव भी है, क्योंकि एक्टिविटी में ही रहेगा, ये नहीं कि जहाँ अंदर डाल दिया पड़ा रह गया और वैसे ही पड़ा रहा। इसने साथ साथ एक्टिविटी करनी है जो नेचुरल बोन के साथ आयन एक्सचेंज करेगा। तो ये 6 to 8 वीक्स में इसकी जो स्टिमुलेशन, जो ग्रोथ शुरू हो जाएगी नेचुरल बोन की, तो और 2-3 वीक्स में ये अपना पूरी शेप ले लेती है हड्डी। डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन, इसका गठन इसलिए किया गया था कि बैंक डिपॉजिटर्स को अगर किसी समय आरबीआई मॉरेटोरियम लगाती है तो उस समय उनका पैसा बैंकों से निकालने पर जो रोक लगती थी उससे उनको दिक्कत आती थी। आपको याद होगा माननीय वित्त मंत्री जी ने ही पिछले वर्ष यह निर्णय लिया था कि 1 लाख से उसकी सीमा को बढ़ाकर 5 लाख रुपया कर दिया गया था, और आज की कैबिनेट में जो निर्णय लिया गया उससे अब यह तय सीमा होगी कि 90 दिन के अंदर ही जमाकर्ताओं को
बैंक डिपॉजिटर्स को अपना पैसा 5 लाख की कीमत तक का मिलेगा। जो लॉ अबाइडिंग कॉरपोरेट्स हैं उनको भी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का लाभ देने के लिए और जो लगातार एक प्रयास सरकार ने किए उसमें कंप्लायंस बर्डन भी कम हो, उसमें जो क्रिमिनलिटी थी उसको हटाकर पेनल्टी के रूप में किया है, ताकि जो सामान्य प्रवृत्ति के उल्लंघन है उसको कारावास की बजाय जुर्माने की व्यवस्था की है। इससे भी उसको कामकाज करने में लाभ मिलेगा और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को और आत्मनिर्भर भारत को भी बल मिलता है। देखो, अभी माहौल टेंस है, बातचीत चल रही है एट अ सीनियर लेवल। सिचुएशन अभी नॉर्मल है। सीआरपीएफ एज अ न्यूट्रल फोर्स बॉर्डर पे डिप्लॉयड है। असम मिजोरम बॉर्डर रिस्पेक्टिवली फोर्स रिस्पेक्टिवली अपने अपने एरिया में है। कितने फोर्स डिप्लॉयमेंट किया गया है? वेल दैट्स अ सिक्योरिटी क्वेश्चन, कांट बी आंसर। अभी क्या पूरे इस लोकेशन में क्या आप लोगों ने कोई धारा 144 लागू किया है और क्या यहाँ का सिचुएशन है हम लोगों के लिए? नहीं, सिचुएशन ऐसा है कि बिकॉज एज आई टोल्ड यू देयर आर सीनियर लेवल टॉक्स गोइंग ऑन एंड इट्स अ कॉन्फ्लिक्ट जोन, दैट्स व्हाई कोई फर्दर मूवमेंट उस जोन में नहीं है। तो क्या अभी यहाँ से आगे किसी को आगे जाने दे रहे हैं आप? या अभी ओनली द रेसिडेंट्स हु आर ऑफ दैट एरिया दे आर टू मूव, नो वन एल्स इज टू मूव इन दैट एरिया। अभी कांग्रेस के भी कुछ पॉलिटिकल लीडर्स भी आए हैं, आप वो लोग भी अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या आप लोगों के पास कुछ ऐसा परमिशन है, क्या वो लोग मूव कर सकते हैं? नहीं, एज आई टोल्ड यू इट्स अ कॉन्फ्लिक्ट जोन, इट्स नॉट अबाउट कांग्रेस और एनी अदर पॉलिटिकल पार्टी, इट्स अ कॉन्फ्लिक्ट जोन फॉर एवरीवन, इट्स द सेम थिंग। Our own CM yesterday he did not move to the conflict zone. So everyone understands the security concerns. So let's all move towards a resolution. What's your message for this, or what's your message for your public, ma'am, on this area? My message is to remain calm, to have trust in police, and to have trust in Assam government. We'll have a resolution very soon. मैं अभी ये कहना चाहती हूँ कि आज मंत्रिमंडल का सबसे बड़ा निर्णय हुआ है कि जो शालेय शुल्क जो है स्कूल का, वो शालेय शुल्क जो है वो 15% कट करने का निर्णय लिया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने राजस्थान के केस में जो जजमेंट दिया है उसी को लागू करने का निर्णय जो है वो आज मंत्रिमंडल की मीटिंग में लिया गया है। और इसके जो बाकी कोई और चीज़ें हैं उसके लिए हम आने वाले दिनों में आपके सामने आएंगे और आपको उसके बारे में अवगत करेंगे। लेकिन आज मंत्रिमंडल ने 15% जो है रिजर्वेशन फी का निर्णय लिया है। मैंने हमेशा ही कहा है कि राइट टू एजुकेशन हर बच्चे का अधिकार है, शिक्षा मिलना हर बच्चे का अधिकार है और उस बच्चे को शिक्षा देने के लिए हर इंस्टीट्यूट को कटिबद्ध होकर रहना पड़ेगा। बीच में हमारे पास जो कंप्लेंट आए थे उनको हमने पूरी तरह से उसकी इंक्वायरी भी शुरू कर दी है। स्कूल को आपको पता होगा, चाहे मुंबई हो, चाहे ठाणा हो, चाहे नई मुंबई हो, चाहे औरंगाबाद हो, हर जगह पे हमने जो स्कूल बच्चों को ऑनलाइन एजुकेशन के लिए रोकते हैं या उनको रिजल्ट नहीं देते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई जो है हमारे माध्यम से शुरू है। लेकिन आज का जो निर्णय है वो बेसिकली मुझे लगता है जिसका बहुत दिनों से पेरेंट्स को, बच्चों को बहुत इंतजार था कि फीस शुल्क में किस तरह से कटौती होगी, तो वो निर्णय हमने लिया है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.